Hello, my dear student. My name is R.P. Singh and I'm starting the new chapter of Biology of Class 10, the third chapter. The name of this chapter, How do organisms reproduce? कैसे organism reproduction करते हैं? Before the start of this topic, there is another question in our mind. Why organisms show reproduction? क्यों organism reproduction करते हैं? The answer of this question is for the continuity of life. लाइफ को कंटिन्यूस रखने के लिए ऐसा करते हैं. अगर हमारे पूर्वज हमको जन्म नहीं देते या हमारे फादर नहीं होते और उनके संतान नहीं होती, and this how this life get continuous. So for the continuity of life, it is very essential process. Now we are taking the first definition of this chapter, that is what is reproduction. First one is reproduction. What is reproduction? The process of giving birth. The process of giving birth to their offspring. Offspring means होता है संतान. The process of giving birth to their offspring similar to itself is called reproduction. The process of giving birth to their offspring similar to itself. अपनी जैसी संतान को जन्म देना, and this is known as reproduction. Now it is of two type. Reproduction is of two types. First one is sexual reproduction. Second one is asexual reproduction. पहला sexual reproduction, another one is asexual reproduction. We will take one by one. First one sexual reproduction, another one is asexual reproduction. So सबसे पहले हम sexual reproduction को लेंगे. First one is sexual reproduction. The process of formation of new offspring by the fusion of male and female gametes. Simple definition है. The process of formation of new offspring by the fusion of male and female gametes. Sexual reproduction के दौरान एक तो जब हम इसका डिफरेंशिएट करवाएंगे, two parents इन्वॉल्व होते हैं, male and female, and during this reproduction they produce male gametes, that is known as sperm, the female gametes, that is ovum or egg. By the fusion of these male and female gametes, the new offspring are produced by the fusion of this male and female gametes, and this is known as sexual reproduction. Another one is example, हम इसका देख लेते हैं sexual reproduction का. दोबारा से definition: the process of formation of new offspring by the fusion of male and female gametes, and this is known as sexual reproduction. Example:
Example of sexual reproductions: flowering plants and animals. Flowering plant and animals, these are the example of sexual reproduction. Now the next one is asexual reproduction. Asexual reproduction, ये उसका बिल्कुल उल्टा है, वही the process of formation of new offspring, उसमें with fusion या by the fusion of, and here without fusion, offspring without fusion of male and female gametes, and this is known as asexual reproduction. नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. इसमें एग्जाम्पल हम देखेंगे. एग्जाम्पल्स आर किंगडम प्रोटेस्टा या प्रोटेस्टियंस, मोनेरेंस MONEAM. किंगडम मोनेरा में हमें ये देखने को मिलता है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा में हमें देखने को मिलता है. प्रोटेस्टा में कौन कौन सा आता है? अमीबा, पैरामीशियम, एटसेट्रा. इसके बाद किंगडम मोनेरा भी आता है. इसमें किंगडम मोनेरा में हमें ये देखने को मिलता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. किंगडम मोनेरा में आपको देखने को मिलेगा आर्कियोबैक्टीरिया, एंड यूबैक्टीरिया. एक्सेट्रा. इन सब में हमें देखने को मिलता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ वी विल हैव मेक द चार्ट, काइंड ऑफ चार्ट to classify sexual and asexual reproduction. Reproduction, here it is divided into sexual reproduction. Now other one is asexual reproduction. Asexual reproduction is further divided into 6 types. That is first one, fission, FISSION. फिशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू बाइनरी फिशन, इसको बाद में देखेंगे. इसके बाद फिशन, बडिंग, BUDDING, बडिंग. एंड थर्ड वन फ्रेगमेंटेशन. Now fourth one
फ्रेगमेंटेशन के बाद रीजनरेशन, इसके नीचे यहाँ पे जगह कम है, आप आगे बढ़ा के इसके नीचे लिख सकते हैं रीजनरेशन। फिफ्थ वन इज स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन फिफ्थ। एंड द सिक्स वन इज, ऊपर से बता देते हैं, एंड द सिक्स वन इज vegetative propagation. Now the sixth one is vegetative propagation. PROPAGATION, vegetative propagation. First one is fission, second one is budding, third one is fragmentation, and fourth one is regeneration, and fifth one is spore formation, and sixth one is vegetative propagation. Now we will take one by one. First we will take fission, and we will also discuss how many types it is fission. Fission is कितने टाइप का फिशन होता है ये हम देखेंगे. तो फर्स्ट we will take fission. फिशन, फर्स्ट फिशन. फिशन का मतलब होता है टूटना. टूटना, इसमें जो डेफिनेशन है, पेरेंट बॉडी when parent body divides in two or more daughter cells, जब पेरेंट्स की बॉडी दो या दो से अधिक डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए, एंड दिस इज नोन एज फिशन, एंड इट इज ऑफ टू टाइप. First one is binary fission, and second one is multiple fission. Write down these. There is two type of fission, that is binary fission and multiple fission. अब इनको फिर इनके बारे में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज बाइनरी फिशन and what is multiple fission. First one, binary fission. Definition दोबारा से अगर समझ में नहीं आ रहा हो, when parent body divides in two or more daughter, DAUGSTER, daughter cells, called fission. Now we will take the first one, that is binary fission. First one is binary fission. इसमें जो वर्ड्स मैं बना रहा हूँ वो काफ़ी बड़े हैं. बाइनरी फिशन, ताकि आपको आसानी से दिखाई दे और बड़े दिखाई दे. बाइनरी फिशन, when parent body divides two equal daughter cells called binary fission. Example, amoeba, AMOEBA, अमीबा, ये इसका एग्जाम्पल है. जब पेरेंट की बॉडी दो हिस्सों में, बराबर हिस्सों में, या टू डॉटर सेल्स में, इक्वल डॉटर सेल्स में, बराबर की सेल्स में डिवाइड हो जाती है, एंड दिस इज नोन एज बाइनरी. बाइनरी मीन्स होता है टू. When a parent body is divided in two equal daughter cells, and this is known as binary fission. एग्जाम्पल में अमीबा. अब इसके डायग्राम को हम देखेंगे कैसे इसका डायग्राम बनता है.
अमीबा this is amoeba. Amoeba get divides into two daughter cells and first step is one. अगर इसका हम फर्स्ट स्टेप देखें कि कैसे अमीबा जो है अपनी दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, तो अमीबा गेट स्ट्रेच, बड़ा होगा साइज में, फिर आपस में बीच में से दो सेल्स दो पार्ट्स में डिवाइड होके एंड फॉर्म टू इक्वल डॉटर सेल. हाउ इट इज फॉर्म्ड? फ्रॉम इन बिटवीन, बीच में से ये साइज में स्ट्रेच हो जाता है. यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसके अलावा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है. दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज साइटोप्लाज्म. द जेल लाइक सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन द सेल दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म. When the cell gets stretched, its nucleus also gets stretched and prepare for division. Here we will draw the diagram by the colored chalk. यहाँ पर हम ये देखिए, यहाँ पे न्यूक्लियस भी इसका डिवाइड हो रहा है. देखिए न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है. And cytoplasm also prepare the cell for division. और वे डिवीजन के लिए अब यहाँ से अमीबा जो है इट फॉर्म टू इक्वल डॉटर सेल. वो दो बराबर इक्वल डॉटर सेल बना लेगा. यहाँ पे साइज छोटा है तो माइट बी अमीबा जो है थोड़ा छोटे साइज में बनाएंगे, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इट इज फॉर्म टू इक्वल डॉटर सेल. एक तो ये बना दिया, एक दूसरा यहाँ पे थोड़ा जगह कम है लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं बनेगा, इधर बना लो. यहाँ पर हम बना लेते हैं. एक ये बन गया और दूसरा यहाँ बना लेते हैं. ठीक है, इस तरह से इट फॉर्म टू इक्वल डॉटर सेल एंड दे ऑल हैव इट्स ओन न्यूक्लियस. और इन दोनों के पास अपना अपना न्यूक्लियस होगा. सो इस तरह से दीज आर टू इक्वल डॉटर सेल. इक्वल डॉटर DAUGSTER डॉटर सेल्स. डॉटर सेल्स इसलिए कि उसी का पार्ट टूट के ये दो सेल्स में डिवाइड होता है. कई बार ये क्वेश्चन होता है इन 12th क्लास, वाई दीज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर इमॉर्टल. क्यों ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अमर होते हैं? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि देयर बॉडी इटसेल्फ डिवाइड्स एंड डिवाइड्स अगेन एंड अगेन. ये फिर अमीबा जो है फिर से डिवाइड्स होंगे और दो इक्वल डॉटर सेल बना लेंगे. इस तरह से ये समझा जाता है कि ये अमर हैं, कभी इनकी मृत्यु नहीं होती है. Because their body parts again form a new organism and that is why it is said that they are immortal. ये कहा जाता है कि वो अमर हैं. तो ये हो गया बाइनरी फिशन के बारे में. नेक्स्ट वन इज मल्टीपल फिशन. नेक्स्ट वन इज मल्टीपल फिशन. सेकेंड बार इज इसकी सेकेंड टाइप फिशन का, दैट इज मल्टीपल फिशन. मल्टीपल फिशन. मल्टीपल फिशन इज व्हाट? when parent body, सेम उसी की तरह की डेफिनेशन, when parent body
divides more than two daughter cells. एक से ज़्यादा पेरेंट बॉडी जब एक से ज़्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड हो देन इट इज नोन एज मल्टीपल फिशन. एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम. What is plasmodium? Plasmodium is a protozoa and it is comes in the same category, that is same type, that is protozoa. प्रोटोजोआ में ये आता है, अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, प्लाज्मोडियम भी आता है और ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है एंड दैट कॉजेज मलेरिया. ये मलेरिया कॉज करता है और मच्छर की वजह से, मॉस्किटो की वजह से एक जगह से एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन्स में ट्रांसफ़र होता है. एंड दिस इज प्लाज्मोडियम इन आरबीसी. इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम इन आरबीसी. जब मलेरिया का मॉस्किटोज यानी एनाफ्लीज जब एक ह्यूमन को काटता है, इन्फेक्टेड पर्सन से अपने माउथ में ब्लड को ले जाता है, दूसरे के अंदर डालता है, तो प्लाज्मोडियम को छोड़ देता है. प्लाज्मोडियम जब उसके लीवर में इंटर होता है या आरबीसीज में जब इंटर होता है तो वहाँ रैपिडली मल्टीप्लाई होता है, एक से ज़्यादा सेल को बनाता है. दैट इज़ वाई दिस फिशन इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिशन. एंड यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. This is RBC cell and these are plasmodium. These plasmodium are in